Hello everyone, welcome to Life with Sunanda and Sandeep. As you can see, I was heading towards the station because मेरे in-laws आ रहे थे. I had booked a cab but I got it very late. बहुत ज़्यादा traffic था. They were continuously waiting for me and I felt so bad. I was under guilt. On the way, I saw this beautiful blue bus and I had to capture it. You know me, I love the blue color. Finally, I reached New Delhi railway station and वहाँ पे भी as usual traffic ही था. After crossing all the rush, I saw a such long line at the escalator that I could not even take it. सारे लोग escalator ही use कर रहे थे वहाँ पे. I decided to run through this step instead. मैं लिटरली भागते हुए ऊपर गई एंड स्टेशन पे इतनी भीड़ थी इट वाज डिफिकल्ट इवन टू वॉक प्रॉपर्ली बट समहाउ साइड से निकलते हुए आई केप्ट मूविंग आई वाज सर्चिंग फॉर प्लेटफॉर्म नंबर 15 बिकॉज राजधानी वहीं पे आती है द टाइमिंग फॉर द ट्रेन वाज 10:30 AM एंड मैं ऑलमोस्ट 1 आवर लेट मैं लिटरली भाग रही थी टू सी कि पापा मम्मी कहाँ बैठे हैं आई कुड सी द ट्रेन but I could not see them. Everything looked blank for a moment. Then I called Papa and he said, escalator se seedhe aate jao, you will find us. And then finally I saw him and I just rushed. And guess what? They were not even a little upset. उनके face पे सिर्फ smile थी. That made my heart so full. They understood the traffic. They understood me. Then I gave the phone to mummy and said, "मम्मी मेरी और पापा की वीडियो बना दो." And the sweetest part, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा. She herself said, मैं तुम्हारी वीडियो बना दे लेती हूँ. I had already told my cab driver to wait so that we don't waste time, booking another cab. बेसिकली कभी कभी स्टेशन में ये प्रॉब्लम होती है कि कैब आप बुक करते रहोगे फिर भी वो नहीं मिलते हैं तो इसलिए आई जस्ट थॉट कि मैं उसी ड्राइवर को बोलूँ रुकने के लिए जो मुझे लेके आया था स्टेशन तक आई जस्ट कॉल द कैब ड्राइवर टू कम टू पिक अस अप एंड फिर हमने थोड़ी सी वीडियो और बना ली पापा मम्मी के साथ जब तक कैब आ रही थी क्योंकि स्टेशन में वो ज़्यादा देर रुकने नहीं देते दे चार्ज समथिंग सो ही वॉज वेटिंग आउटसाइड the gate and then when he came back we just sat and then we started to head towards home my mom had sent some chopped fruits for both of them because she thought they might feel hungry that small gesture means everything फिर हमने सब fruits कार में ही finish कर डाले Finally we reached home. फिर हम ऊपर जाने लगे. Everyone was so happy to meet each other. The last time they came was on my birthday, which is also Papa's birthday. One day later. मैंने जल्दी से अपने मॉम के हाथ पे कैमरा थमा दिया कि आप प्लीज से कैप्चर कर लो. Then began the gupshup session. आप देख सकते हो that they are so happy to talk to each other and discussions चल रहे हैं क्या लाए हो क्या है क्या नहीं है उसके बाद मम्मी ने खोला अपना प्लांट का ट्रेजर so many plants from their home garden means specially medicinal plants भी थे उस पे and one of is very beneficial for diabetic patients. I will explain about that plant later in my next reel. बहुत सारे चीज़ लाए थे वो वहाँ पे एंड पापा ने बोला कि मैं सारा यहाँ पे लगा दूंगा सो द डायबिटिक प्लांट इज़ रियली अ गुड वन ये हर जगह नहीं मिलती है दिस इज़ रियली वेरी रेयर शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट सो they bought it for them to plant it and then she can eat then came the big surprise one bag had clothes and the rest were full of food items so many unique things that are rare in Delhi but specially bought banana flour star fruit from his garden fresh lemons full of juice small cute brinjals then some pickles and chilies fresh cabbages that he planted 1 month before just so he could bring them for me एंड सारे एक्साइटेड थे मेरी मम्मी तो बहुत ही एक्साइटेड थी सारी चीज़ें देख के कि अच्छा अब तो ये सारा इतना सारा सामान जो यहाँ पे नहीं मिलता मम्मी को वो खाने वाला जो स्टार फ्रूट मैंने आपको दिखाया था दैट वाज लाइक जस्ट एक बचा हुआ था पापा के गार्डन में वो मेरे लिए बचा के रखा हुआ था उन्होंने the lemon that you can see in my hands is like so tiny just look at it but बहुत ज़्यादा जूस निकला इसमें से जब हमने खाया ये
नाउ लेट मी शो यू द क्यूट लिटिल ब्रिंजल्स कि बहुत सारे वो लेके आए थे और भी था जो मम्मी निकाल रही थी। 4 चिल्ली उनके गार्डन से। उसके बाद सारे हम ऐसे बात करके हम बातें कर रहे थे एंड ये देखो कैबेज का। सो इतने सारे कैबेजेस लाए थे। इमेजिन ही स्टार्टेड ग्रोइंग देम आफ्टर बुकिंग द टिकट सो दैट आई कुड ईट देम फ्रेश। मतलब इतना प्यार। एंड उसके बाद फिर मैं मम्मी और दोनों मम्मियों को मैं ऑरेंजेस खिला रही थी कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे ये देख के और मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैं उनको ऑरेंजेस खिला रही थी। दैट्स द वन पार्ट दैट आई कुड डू फॉर देम। उसके बाद मम्मी ने एक फिश दिखाई दैट शी बॉट फॉर माई मॉम बिकॉज शी लव्स इट। तो दिस अ ड्राई फिश। ये भी थोड़ा रेयर ड्राई फिश है। इसको हम बोलते हैं बंगाली में छुरी ड्राई फिश। उसके बाद फ्रिस्की मिलने आ गई मम्मी से। आपको पता है माई मदर इन लॉ she did not like pets earlier, but now she loves Frisky. I could see that in her eyes. फिर लेटर जैसे आप देख रहे हो कि वो स्क्वाश भी लाए थे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है स्क्वाश, तो इसलिए वो स्क्वाश ले गए। उसके बाद संदीप ने कॉल कर लिया एंड व्हेन संदीप कॉल्ड इन I was showing him everything. So these are the things that mom and dad bought for us. और मैं उसको सब कुछ दिखा रही थी और उसको टीज कर रही थी कि देख पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं कि इतना सारा सामान लेके आए हैं वो मेरे लिए अपनी गार्डन से। एंड ही फेल्ट रियली वेरी जेलस। मैंने भी थोड़ी फिर मैंने दिखाया कि देख और एक सामान है जो तेरे लिए है, जब मैं मिलने जाऊंगी तेरे से दोबारा तो फिर मैं ले जाऊंगी। आई वाज शोइंग हिम वन बाय वन। ये देख कि एक बैम्बू शूट पिकल है, देन देयर इज अनदर वन लाइक घोस्ट चिली पिकल। सो ऑल ऑफ दिस मम्मी पापा बॉट फॉर हिम एंड ही वाज रियली वेरी हैप्पी। मैं और मम्मी उसे दिखा रहे थे ये देख बाद ये देखो ये है इसको हम बोगोरी बोलते हैं। आई कैन रिकॉल द नेम इंग्लिश नेम राइट नाउ, बट यस दिस इज समथिंग माय मॉम वांटेड देम टू ब्रिंग इन, सो वो लाए हैं एंड मैंने फिर इसको वॉश कर लिया। इससे अचार बना सकते हैं लाइक स्वीट अचार। सो मैंने अच्छे से वॉश करके उसके बाद मैं ले गई उसको सुखाने के लिए धूप में बिकॉज दिस नीड्स टू ड्राई अप। And then when I came back I saw my mom, she made handmade sweet pati shapta जो हम बोलते हैं इसे। It was so yummy, everyone loved it. We sat together, laughed, talked and just enjoyed being with each other after so long, and honestly these are the moments that matters the most. सारे ऐसे बैठ के जब बातें करते हैं बहुत अच्छा लगता है। घर बिल्कुल हरा भरा सा लगता है। आई रियली लव इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।